आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है। धन्यवाद देते परमेश्वर को आज एक बार फिर से। For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जब परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हमारे जीवन में आनंद आता है, खुशहाली आता है। शैतान भागता है, शैतान हमें छू नहीं सकता है। Amen. Hallelujah. प्रार्थना करें इसमें। Heavenly Father, we just bow before your presence once again this afternoon, Lord. We just want to thank you for your loving and mercy. We thank you for this day that you have given us, O God Almighty. Hallelujah. Father, we just commit this service into your hands right now, Lord. As we worship you, Lord, let it be like a sweet fragrance unto you, Lord. As we come into your presence, Lord, to worship you, Lord, accept us as we are, O God Almighty. As your word declares, Lord, that we need to come to you. And this afternoon we come back to you, God Almighty. Father, I pray for your Holy Spirit to minister to us this afternoon, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Father, I also commit those that are online, oh God Almighty, those that are being part of this service, Lord. I pray for your Holy Spirit to minister to them too, oh God Almighty. Be with them, Lord. Comfort them, Lord. Those that are sick, Lord, I pray that you touch them and heal them, oh God Almighty. From the crown of their heads to the soles of their feet, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 हर एक को स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Just want to welcome you all in Jesus' name. आज हमारे बीच में एक और भाई आया है। Just want to welcome you भाई हमारे बीच में and pray that the Lord will bless you. जैसे आप आए हैं, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहे। Amen. I'm a little bit under the weather, but we just thank God that we are able to come into His presence to worship and praise Him. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आराधना हो आत्मा से। बाइबल बताता है कि हम अपने आत्मा से परमेश्वर को आराधना करें, सिर्फ जबान से नहीं, उसके प्रेज खाली नहीं करें, लेकिन हम उसकी आराधना करें अपने दिलों से।
आराधना हो सच्चाई से, हर एक दिल प्रभु यीशु मसीह की आराधना करे। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना। जब हमारे दुश्मन हमारे आसपास रहते हैं, जब हम उसको नेमाया के देखते हैं, जब वो जेरूशलेम को रिबिल्ड कर रहा था, and he saw the enemies all around him, but he was not afraid, but he was prepared. जो उनके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, they were basically like soldiers थे, और कंस्ट्रक्शन भी करते थे। एक हाथ में उनकी तलवार था और दूसरे हाथ से वो लोग काम करते थे। So can you imagine the scene यहाँ पर? And they were ready. The enemies that were around them, they could not touch them. Why? Because the Lord was with them. परमेश्वर उनके साथ में था। हमारे साथ भी हमारा प्रभु रहेगा और शैतान हमें छू ना सके। हमारा जो दुश्मन है वो हमें कुछ ना कर पाएगा हमारे साथ। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मुझे
बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। हालेलुया, हालेलुया। आए तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। हमारा प्रभु अपना नजर हमारे ऊपर रखता है, हमें वो देखभाल करता है। जैसे एक शेपर्ड है अपने शीप को देखभाल करता है, उसी तरह से हमारा प्रभु, हम उसके वो हमारा चरवाहा है और हम उसके भेड़े हैं, और वो हमें देखभाल करता है। वो हमें चोट नहीं पहुंचाएगा, वो हमारे साथ साथ रहेगा। जो दुश्मन आएगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, उसको हटा देगा, उससे लड़ाई करेगा। वो एक ढाल बनकर हमारे बीच में हो जाएगा और हमारे लिए वो लड़ेगा। हालेलुया। कितना प्यार है हमसे हमारा प्रभु का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
near to that blessed cross where your precious blood flows, O God Almighty. Hallelujah. Father, we thank you this afternoon. We thank you for your love and your mercy upon our lives, Lord. We thank you for what you have done for us, Lord. We thank you, you sacrificed your life for us on that cross of Calvary. And through that, we have redemption. We are reunited with our Heavenly Father. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, God Almighty. Thank you, Father. We praise you, and we just commit this service once again into your hands, Lord. May your Holy Spirit continue to minister to us, Lord, as we hear the words of God Almighty. I pray in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. 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 You may be seated. समय वचन सुनेंगे, लेकिन वचन से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ. आज शाम की 6:30 हमारा सर्विस जो सनराइज चर्च लैंगली में है वहाँ पर रहेगा. और इफ़ यू आर इन द एरिया और आना चाहते हैं ज़रूर से आए. एंड इट विल बी अ टाइम ऑफ वर्शिप एंड pastors will be there to pray with you. So that is one of the things. The second thing, hey, next week Mother's Day, and we will have a bit of a celebration here for Mother's Day. At the same time, we will have a communion because आज हम लोग communion नहीं करेंगे. So we'll do that both together next Sunday के. Amen. So these are the command जो announcements है. और हम लोग याद रखें, प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए और लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो आए यहाँ पर. और जो नहीं आ सकते हैं हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो समय निकाल कर आए और उनको काम से छुट्टी मिले ताकि वो यहाँ पर इस गिरजाघर में आ सके. आमीन. तो इस समय हम वचन सुनेंगे और आज के प्रचारक भी फिर है भाई ज़िकियल. एंड लेट्स वेलकम हिम. प्रेज द लॉर्ड. आज मैं फिर से कुछ खास शेयर करना चाहता है. और जो लास्ट वीक हम लोग मैसेज सुना रहा उसके कंटिन्यूएशन है ना मैसेज जो नेम डेट में वीक बिफोर लास्ट बताया इसकी तुम्हें प्रीच करे के. एंड आई वाज प्रिपेयरिंग this message and it became too long and I was trying to figure out कि कौन चीज़ उसमें से काटी कौन सी नहीं काटी. And then डेट के मैसेज करा कि कैन आई हैव 2 weeks. सो दैट इज़ वाई आई एम 2 continuous week प्रीच करता है. नाउ लास्ट वीक हम लोग देखा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हेन वी शूट इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी हिट द राइट स्पॉट. और हम लोग कौन चीज़ देखता रहा डेविड के जो गोलायत के साथ लड़ाई रहा उसके जो सेकंड पार्ट आज हम लोग देखेगा. वी आर टॉकिंग अब आज हम लोग जो विषय में बात करना चाहता है वो है कि फियरलेस थ्रू द फियर ऑफ गॉड. कि हम लोग जब परमेश्वर के भय में रहता है, जब उसके भय में रहता तो हम लोग के और कोई चीज़ से भय नहीं करना है. बिकॉज when we fear the Lord, that's where everything starts to fall into place. आजकल के ज़माना में जैसे हम लोग रहता है फिया इस जब हम लोग फिया के बारे में सुनता है when we think about fear वो एक ऐसा लगता है कि वो हमें कमज़ोर बनाता है. और हम लोग फिया के बारे में सुनना नहीं चाहता, फिया के बारे में बात नहीं करना चाहता बिकॉज हमें ऐसे लगता है कि वो हमें कमज़ोर बना देगा. लेकिन एक ऐसा फिया है जो बाइबल हम लोग के बताता है जो हमें मजबूत करता है और वो है द फियर ऑफ गॉड. और अगर हम लोग अपन लाइफ में से वो जो फिया है अगर हटा देता है देन एवरीथिंग इज इन वेन. बिकॉज जब हम लोग परमेश्वर के भय में नहीं जीता है everything that we do, everything that we achieve, it's all in vain. Now there's 2 types of fear. जब हम लोग fear के बारे में बात करता है there's 2 different types of fear. जैसे हम लोग पहला fear के बारे में देखता है जब हम लोग रात के सोने जाता है then we close our doors, we make sure that our doors are closed. हम लोग जाता है चेक करता है लॉक्ड है और हम लोग आर्म स्टे कर लेता है घर में
ताकि हम लोग के घर में रात के कोई चोर नहीं हलेगा, अगर कोई हरे तो एटलीस्ट हम लोग के अलार्म ऑन हो जाए एंड that's a fear. वो डर है. It's not out of a respect that we have for somebody. It's out of fear that somebody will enter the house. और दूसरा तरह का फिया है, it's more to do with respect. जैसे हम लोग I remember जब हम लोग छोटा रहा, I was like still remember 5 years old, और हम लोग गया स्कूल पे एक कंपटीशन रहा, सो का कंपटीशन चलत रहा, और हम लोग जो छोटा छोटा रहा हम लोग वहाँ पर खेलता रहा. एंड ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पर जो स्कूल के टीचर रहा, द टीचर वाज क्रॉसिंग, एंड जो हमारा भाई लोग रहा, दे टोल्ड मी गो हाइड, लेट्स गो हाइड. तो हम लोग जो उसके नीचे स्कूल के जो बिल्डिंग रहा उसके नीचे थोड़ा जगह रहा, हम लोग सब जाके वहाँ लुक गया. तो we didn't do anything good. I didn't even know why we had to hide. But हम देखा वो बड़ा बड़ा जब जाकर लुकता तो मैं भी जाकर संगे लुक गया. वो जो हम लोग उसके नीचे लुका रहा, it's not out of fear because we were not doing anything wrong, but it was the respect that we had for the teachers, the respect that my brothers were taught, and the other students that were taught, that respect was the fear that led us to go and hide. वो है वो respect. तो आज हम लोग जो fear जो परमेश्वर हमें बताता है, जो when we go back into the Old Testament days, it was the first fear because because people were under the law, and every thing that they did, there was a consequences to it. जैसे हम लोग Sodom and Gomorrah के बारे में देखता है, और कई से जगह भी देखता है, when people sin there was always a consequences to it. So वो उनके भीतर एक डर रहता है कि अगर हम कुछ करेगा then we will be punished for it. Now we are under grace, but we still need to have the fear of the Lord in our life. And this fear that we still have, even though we are under grace, it's out of the respect that we have for God. It's out of the reverence that we have to God. It's out of the honor that we have for God. और जब हम लोग वो डर के हटा देता है अपन लाइफ से, then basically everything that we do has no value to it. अगर आज हम लोग यहाँ पर कुछ वचन को देखेगा, जो पहला वचन हम लोग देखेगा यहाँ पर मिलता है बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 5 verse 11 में, और यहाँ पर बतावे है, अगर हम पढ़ेगा जोन वहाँ ऊपर है स्क्रिप्चर में, तो वहाँ पर बताए, know therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also that also are made manifest in your conscience. तो यहाँ पर बताए कि it uses the word terror of the Lord. हम लोग जानता है यहाँ पर पॉल जो बतावे है, बोले we know what it means to fear the Lord. क्या आज हम लोग जानता है what it means to fear the Lord? क्या आज हम लोग के लाइफ में जो चीज शुरुआत है हम लोग के लाइफ के, the basis of our faith, जो चीज हम लोग करता है, does it start with the fear of the Lord? क्या is that the priority that we have? अगर हम लोग book of Proverbs में जाता है, तब Proverbs chapter 9 में हम लोग के बतावे है कि the fear of the Lord is the beginning of the knowledge and the wisdom. कि अगर हम लोग परमेश्वर के आज डर में नहीं है, आज हम लोग जब परमेश्वर के डर में रहता, that's where the knowledge and the wisdom starts. आज हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, तबे से आज हम लोग यहाँ पर सबको बैठा है. We want to do something for God. We want to live in union with God. जब हम लोग यहाँ से गुजर के जाएगा, we want to have that fellowship. We want to live with God. That's why we are sitting here. Otherwise हम लोग आज यहाँ पर कोई नहीं रहता. जो हम लोग के ऑनलाइन जुड़ा है, the only reason आज जुड़ा है because they want to know how we can have that fellowship with God. कैसे हम लोग परमेश्वर के साथ रहना चाहता है. कभी कभी हम लोग के लगे है कि it's very difficult. There's so many things to learn.
आजकल तो हम लोग देखता है कि ऑनलाइन जाके अगर हम लोग देखता है there is so many false prophecies, so many false teachings out there. How do we know what we need to do? It all starts when we start fearing God. जब हम लोग परमेश्वर से अपना जो है डर बना कर रखता है, जब हम लोग उसके रेफरेंस दे लगता है, everything else will start to fall into place. We don't have to worry about it. But it is very important that we know the most important thing, which is to fear the Lord. हम लोग जब परमेश्वर के डर में रहता, we don't need to fear anything else, because जैसे हम लोग का बुक ऑफ शाम्स बतावे chapter 23 में बताया कि even if you walk in the valleys of shadows of death, you don't have to fear anything, because the God will protect us, he will take care of us. तो हम लोग जब परमेश्वर से अपन डर बना के रखता है, फिर एवरीथिंग एल्स हम लोग के उसके डरना नहीं जरूरी है. कभी कभी हम लोग अपन बिल से डरता है कि नेक्स्ट महीना हम लोग के बिल कैसे पे हुई. हम लोग के भी मोगज रेट जब हम लोग जाएगा रिन्यू कराए, उससे डर लगता है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन वी गो व्हाट रेट्स आर वी गोइंग टू गेट. हम लोग के डर लगता है कि आगे क्या होगा, हम लोग के इतना मेंटेनेंस करे के वो कैसे होगा. और कभी कभी हम लोग के डर लगता है कि हम लोग के कहीं जाना है, how will everything be made possible in our life. But we don't have to fear that, because our God is bigger than everything else. He will take care of all our situations, he will take care of all our circumstances when we have a right relationship with God. और आज हम लोग के खाली एक ही डर के ज़रूरी है, वो है जो परमेश्वर के लिए, कि आज हम लोग उससे जो रिश्ता है वो बनाए रखे, और वो जो रिश्ता है वो टूटे नहीं. जैसे हम लोग लास्ट वीक डेविड और गोलायत और सौल के बारे में, तीन जन के बारे में हम लोग देखता रहा. तो Saul had everything, he was handpicked by God, but because at one point he lost the fear of God, he was still looking after the people, he was still the king of Israel until he died. But जोन गॉड के प्रोटेक्शन रहा, जोन गॉड के साथ उसके रिलेशन रहा, वो हट गया रहा. तो आज ज़रूर, आज हम लोग भले हम लोग के पास सब कुछ है, लेकिन जब हम लोग के पास वो रिश्ता है, जब वो टूट जाता है, then everything else basically is in vain. जैसे हम लोग सौल के देखता रहा, he was still the king but it was all in vain. उसके जो आत्मा रहा, वो लोग आकर सताता रहा, और सौल अपने आप कुछ नहीं कर पाता रहा, उसके जाकर डेविड के लेके आना पड़ता रहा, because he had no power. The protection of God had already left him. तो आज अगर हम लोग और आगे यहाँ पर जाए के देखेगा, तो यहाँ पर बताए है verse 12 में कि it's more important to search our character than our appearance. बोले कि पौलो यहाँ पर बताए कि आज अगर हम लोग कोई चीज़ के लिए बोस्ट करना चाहता है, अगर आज तुम लोग मनता है कोई के जाए के हम लोग के द्वारा बोस्ट करे, let them boast about the character and not about the appearance. हम लोग कई समय हम लोग भी अपन appearance में बहुत लौलीन हो जाता है कि we have to have a certain status in life, we have to live at a certain standard which is going to be acceptable by others. और हम जो appearance के बात करता है, वो खाली हमारा looks के नहीं है, कितना मोटा है उसके बारे में नहीं है, it's also our status, right? कभी कभी हम लोग अपन status लेके बहुत घमंड में रहता है कि I have this position in life at my work, और हमारे पास इतना बड़ा घर है, हमारे पास ये वाला गाड़ी है, हम लोग वो सब लेके बहुत हम लोग के जो घमंड है वो ऊपर चल देता है. We are so fixated on our appearance that we forget that it has no value, because जब हम लोग परमेश्वर के पास जाएगा, we will have a new upgraded जो appearance है, और जो हम लोग यहाँ पर हासिल कराए वो हम लोग कुछ साथ नहीं लेके जाएगा. हम लोग जो गाड़ी हम लोग के यहीं पार्क करके जाए के पड़ी, घर यहीं छोड़ के जाए के पड़ी, they have no value. So the only जो appearance जो status हम लोग आज हम लोग focus करता है, it has no value to it.
ऑफ कोर्स हम आज कोई के नहीं encourage करता है कि you don't go and work hard. It's very important that you work hard. It's important to have blessing because the blessings that we have we can use to bless others. लेकिन उससे कई ज़रूरी है और हम लोग का जो blessing है it also becomes a testimony in our life. So it's very important to have those blessings in our life, but not put our focus on it because हम लोग का जब आज हम लोग का फोकस कहाँ रहे के चाहिए वो जो परमेश्वर के साथ वो रिश्ता के बिकॉज जब हम लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लेता है जैसे डेविड हम लोग देखता है वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना के रखी सरा एंड वट एवर ही वेंट एंड डिड ही हैड सक्सेस वो जब जाकर लड़ाई करता रहा जब अपने आप के डिफेंड करता रहा ही हैड सक्सेस इन व्हाट ही डिड काहे वो नहीं कि वो बहुत एक्सरसाइज करता रहा वो इसलिए नहीं कि उसके जो स्ट्रेटजी रहा बहुत अच्छा रहा वो इसलिए नहीं कि he had more weapons than the other people वो यही कारण रहता रहा बहुत अगर हम लोग बाइबल पढ़ेगा उसके जन जाकर कोंका करता रहा कई समय उसके आर्मी जो रहता रहा वो बहुत छोटा रहता रहा और वो जाकर एक बड़ा ग्रुप से भी लड़ाई करता रहा बट उसको सक्सेस वो कारण मिलता रहा बिकॉज ही हैड द फियर ऑफ गॉड ऑफ कोर्स हम लोग जानता है कि डेविड फेल्ड हियर एंड देयर बट अगर हम लोग उसके ओवरऑल लाइफ देखता है ही हैड दैट रेवरेंस ऑफ गॉड ही हैड दैट फियर ऑफ गॉड इन हिम और वो परमेश्वर के बताए हुए रास्ता पे चलता रहा एंड वट एवर ही डिड वट एवर ही टच्ड इट वाज ब्लेस्ड वही रकम आज हम लोग के लाइफ भी रही when we have that reverence for God in our life when we honor God whatever we touch whatever we do it will all be blessed हम लोग जैसे खाना बनाता है या हम लोग कुछ करता है it will all be multiplied अपने आप सब multiplied हो जी why because God's blessing is in whatever we do फियर ऑफ गॉड आज हम लोग जब परमेश्वर के डर के बारे में बात करता है हम लोग एक गीत भी आज गा रहा जो विच टॉक्स अबाउट दैट कि हम लोग आज जोन सी करता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पूरा दिल से करें और वो हम लोग जब दिल से करता है वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग परमेश्वर के लिए वो दिल से करें कभी कभी हम लोग इसे अपीयरेंस के बारे में बात करता है स्टिल ऑन दैट सेम टॉपिक जब हम लोग कभी कभी हम लोग देखता है कि people kneel down to pray which is good we need to kneel down and pray but when we kneel down to pray what's the motive behind us kneeling down and praying I remember हम लोग जो नाम youth लोन रहा there was a group called T-Bone Flame जहाँ हम लोग youth लोन आके सब टाइम प्रेयर करता रहा और हम लोग देखता रहा कि कई समय जन टाइम 2-3 जन नील डाउन हुए प्रे करे के लिए वो टाइम हम लोग काफ़ी छोटा छोटा रहा एंड वी वुड फॉलो एज वेल वी वुड नील डाउन एंड प्रे लेकिन कई समय जन टाइम हम लोग नील डाउन होता रहा प्रार्थना करे के लिए वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द पर्पस वाज तो आज अगर हम लोग नील डाउन करता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पर्पस ऑफ इट it's very important that we do it out of our character and not out of our appearance अगर हम लोग कोई के देखा करता है then we are doing it out of an appearance कि सबको देखी कि ओ ये भी kneel down होके pray करे but when we do it out of our character तो हम लोग जानेगा कि जब हम लोग kneel down होता है we are declaring God as the King of Kings and the Lord of Lords so when we kneel down to pray that is the purpose of kneeling down and praying we are declaring God as the King of Kings and the Lord of Lords if you are going to kneel down and not declare God as King of Kings and Lord of Lords then kneeling down is just an appearance it has no meaning to it it has no value to it but आज हम लोग जोन सी करता है we have to do it out of our heart वही रकम हम लोग जब परमेश्वर के लिए हाथ उठाता है हम लोग देखता है ढेर जन हाथ उठाकर प्रार्थना करता है which is again a good thing अगर हम लोग if we are doing it out of our character आज जब हम हाथ उठाकर प्रार्थना करता है क्यों हम हाथ उठाकर प्रार्थना करता है
Is it because my neighbor is lifting hand? It is or is it because something we were taught from young age? अगर आज हम लोग वो दो कारण आज हम लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करता है तो वो एक अपीयरेंस है कि हम लोग वो करते आ गया. It's a tradition that we are doing. It's something that we have just followed without knowing the meaning of it. लेकिन अगर आज हम हाथ उठाकर प्रार्थना करता है, क्यों हम हाथ उठाकर प्रार्थना करता है? It's a sign of surrender. हम लोग परमेश्वर के सब सरेंडर करता है. That when we surrender everything as we lift our hand to praise God, that becomes our character. It's no longer an appearance, because हम लोग बोलता है परमेश्वर, I give everything to you. हम लोग कौन सी सरेंडर करता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास. हम लोग के जैसे हम लोग जानता है book of Galatians chapter 5 verse 22 talks about the fruits of the spirit. But हम लोग थोड़ा उससे पहले जाके देखेगा अगर book of Galatians chapter 5, it talks about the things of the flesh as well. It talks about things like quick to anger, talks about sexual immorality, talks about forming divisions, talks about a lot of other things. तो अगर हम लोग के पास समय रहे तो हम लोग जाके पढ़े बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 16 से लेके चैप्टर 21 ले. There's a lot of things in there that talks about the things of the flesh. We surrender all those things to God. हम लोग के जो वीकनेस है, we surrender all those things to God. अगर आज हम लोग तैयार नहीं है अपन वीकनेस, अपन कमजोरी, अपन थिंग्स ऑफ द फ्लेश, आज हम लोग रेडी नहीं है उसके सरेंडर करे के लिए गॉड के लिए, then lifting our hands has no value to it, because it just becomes an appearance at that point. उसके वो हाथ उठाने के लिए हम लोग के बदले में हम लोग के कुछ नहीं मिलेगा, because it's just an appearance. तो आज हम लोग जब परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहता है, it's very important to get our hearts right. हम लोग आज जो चीज़ हमें डरवा कर रखा है, जो चीज़ हमें पीछे पकड़ के रखा है, आज हम लोग उसके डांटे उसको we rebuke them and we tell them that they have no place in our life. The only fear that has a place in our life is the fear of God. We have the only thing that we want to do is have reverence for God. Everything else, you will notice that it starts to fall into place. हम लोग आज लाइफ में जहाँ जाता है, हम लोग आज मे बी हुआ नहीं है, हम लोग जोन सी करना चाहता है, मे बी थिंग्स आर नॉट फॉलिंग इनटू प्लेस. जोन सी हम लोग हासिल करना चाहता है, we may be very far away from that, but once you start having the reverence of God, once you start respecting God, once you start putting God first in your life, everything else will fall into place. God will provide that success that you are looking for. He will guide your path. He will take you forward. तो आज हम सबके यही encourage करना चाहता है कि आज हमारे life में क्या important है? What's important? Do we have that fear of God? Whatever we are doing, the way we are praising God, is it out of a character, or is it out of an appearance of God? वो हम किसी के लिए नहीं सकता है बताए, because the Bible stops me from judging anybody. The Bible stops anyone else from judging anybody. But we need to judge ourselves. क्या आज हम परमेश्वर के लिए जोन सी भी करता है, is it out of a character or is it out of an appearance? क्या आज हम लोग परमेश्वर के साथ रहना चाहता है कि नहीं? अगर हम लोग बुक ऑफ मैथ्यू चाहता है, यहीं पर आज हम कंक्लूड करेगा. यहाँ पर बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22, अगर हम लोग पूरा वर्स 1 से 14 लेके पढ़ेगा, आई वोंट रीड दैट, हम खाली एक समराइज कर देगा. तो यहाँ पर एक पैराबल के बारे में बताता है, और ये इट्स अबाउट अ पैराबल ऑफ द वेडिंग. और यहाँ पर बतावे बोले कि एक शादी के माहौल वहाँ पर एनवायरनमेंट रहा, और वहाँ पर एक व्यक्ति है जो he wasn't dressed as in the wedding gown. वो आएगी खाली नॉर्मल कपड़ा पहन के आएगी. एंड व्हेन जब किंग वहाँ पर से गुजरीस,
तो देखिए कि इसके पास ही इज नॉट ड्रेस्ड इन द वेडिंग अटायर, और फिर उसके किंग आज्ञा दिस दैट ही विल बी पनिश्ड फॉर इट। तो लास्ट में वर्स 14 बताए कि many are uh, for many are called but few are chosen। तो क्या आज आप कॉल्ड है कि क्या आज आप चोजन है? आप ही अपने आप के लाइफ में देख के सकता बताए। तो it is very important that we get our hearts right, because if we are just called, then there is no value. If we are chosen, that's where the value is। अगर आज हम लोग chosen है, that's when we start to focus on our character। if we are just called, that's when we just focus on our appearance। तो आज हम सबके यही आग्रह करेगा कि let's get our characters right, let's get our characters in place, and let's stop worrying about our appearance, because appearance, आज हम लोग appearance के लिए कुछ करता है, it has no value to it। if we start to fear the Lord, if we start to respect God, if we start to honor him, everything in your life will fall into place। एंड जोन ची आज हम लोग के डर और कोई डर है हमारे जिंदगी में, लेट्स गेट रीड ऑफ इट, बिकॉज गॉड विल टेक केयर ऑफ इट, ही इज मोर देन केपेबल। तो आज हम यही वचन हम लोग के बीच में छोड़ेगा। Praise the Lord। परमेश्वर को धन्यवाद देते इस वचन के लिए। भाई जिकिल को भी हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए। और इस वचन में हम बहुत ढेर चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन हमें एक खास चीज़ इसमें बताना चाहता है। If we go back into the book of Exodus में chapter 20 में, we all know the 10 commandments, right? And इसमें यही बताता है, and this is what God had given to Moses। Moses को दिया था, वो Moses के लिए था, Israelites के लिए था, वो आज भी हमारे लिए भी है। And God spoke all these words saying, I am Jehovah thy God who brought thee out of the land of Egypt and out of the house of bondage। वो हमारा परमेश्वर है, जो मोसेस का परमेश्वर, और जो इज़राइलिट्स का, जो उन लोग के वहाँ इजिप्ट से निकाल के लेकर आया। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हम भी, जैसे इजिप्ट रिप्रेजेंट करता है प्लेस ऑफ बॉन्डेज एंड स्लेवरी, हम भी पाप की दुनिया में एक बॉन्डेज में थे और स्लेवरी में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, हमें छुड़ा दिया, राइट? सो he is our God, he is our shepherd, he is our Lord, he is our Lord that has saved us। And verse 3 में कहता है, thou shalt have no other gods before me। What does that mean? उसका मतलब क्या है कि do not have any other gods before me। हम लोग like a lot of people, they have idols। I'm not talking like मूर्ति के विषय में, I'm talking about people, they idolize certain people, और उनको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। Guess what? That becomes your God, and that shouldn't be the case। परमेश्वर को पहला स्थान दो। I remember there was some believers लोग रहा है, and some of these Bollywood से लोग आया था, and it was on a Sunday that they arrived in Vancouver, and what they did, they left the church, they didn't go to church, and they went to greet them। Of course वो लोग मिला नहीं, खाली दूर से देख लिया। But think about it, क्या उन लोग पहला स्थान दिया प्रभु को? No, they had another God ahead of our heavenly Father, right? तो हम लोग के ज़रूरी है कि जब हम लोग परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तो हम लोग उसके ज़रूर से आदर करेंगे, राइट? जब आदर करेंगे तो परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें वो रेस्पेक्ट है, राइट? कि हम परमेश्वर को रेस्पेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए क्या किया, उसका प्रेम जो है जॉन 3:16 में हम लोग को बताता है। एंड देन यू गो बैक टू जेनेसिस में, वहाँ से भी हम लोग की शुरुआत से बताता है, परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया, अपना सांस हमारे अंदर फूका, एंड वी बिकेम अ लिविंग बीइंग। वहाँ से वो शुरू हुआ, एंड वी स्टिल आर अलाइव।
येट हम लोग पाप में डूबे थे, मर गए थे, स्पिरिचुअली डेड, यानी परमेश्वर से अलग हो गए थे पाप के कारण से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, हमें पाप से छुटकारा दिया, परमेश्वर से फिर से मिला दिया। नाउ वी कैन एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हैव फेलोशिप विद हिम। जैसे एडम और ईव परमेश्वर के साथ में फेलोशिप करते थे, उसी तरह से हम भी परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको आदर करते हैं, उसके जो हमारे लिए किया है उसके आदर करते हैं। We respect. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and understanding. Proverbs में ये बात बताता है, the fear of the Lord, right? Not the fear of Satan. Scripture बताता है, the fear is basically from Satan, but like Ezekiel ने बताया कि two types of fear. One is respect, and the other is like really में कि हमें कुछ हो जाएगा. It is self के बारे में. But the other one is respecting God. तो जब वो फिया हमारे जीवन में था कि परमेश्वर को हम रेस्पेक्ट करेंगे, तो परमेश्वर वो आदर करेगा हमारे जीवन में। Amen? Hallelujah. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस वचन के लिए। And we'll sing one more song and then इसके बाद में हम अपना सभा खत्म कर देंगे। सहारा
मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज ये चल रहा हूँ, उठाएगा अगर कोई तो तू ही तो है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, तेरे चरणों में आए प्रभु। एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे I'm reminded of something just right now. बाइबल में लोग के बताता है eye of the needle. प्रभु यीशु मसीह ने कहा था it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the presence of God, into the kingdom of God. ये eye of the needle क्या था? ये eye of the needle actually में एक छोटा सा दरवाजा था जो बड़ा सा दरवाजा में रहा है, लाइक जो एंशिएंट सिटीज में वॉल्स रहता था और एक बड़ा सा दरवाजा रहता था, और उस दरवाजे में एक छोटा सा था, एंड इट वाज मोस्टली फॉर जो पीपल ऑन फुट बेसिकली, वो बेंड होकर उसमें अंदर जाते थे। लेकिन हम लोग जानते हैं ऊंट कितना भारी एनिमल है, लेकिन प्रभु यीशु में कहता है कि उस ऊंट को उसमें से ले जाना इजी है देन एक धनवान जो परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहता है। मतलब क्या है इसका? What it means is no, हम लोग के ऊपर इतना ढेर सारा बोझ है, हम लोग सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते। In order to go to God, हम लोग को सभी कुछ उतारना है। We need to leave everything aside to come into the presence of God. जब उसके पास आते हैं तो वो ऑनर करता है हमें। He is there for us. वो हमें ऑनर करेगा जरूर से। Amen. Hallelujah. Let's look to the Lord in prayer. Heavenly Father, we bow before your presence once again this afternoon, Lord. We just want to thank you for everything that you've done for us, Lord. We give you all the glory and honor, God Almighty, in Jesus' name. As we go to our various homes, Lord, be with us, Lord, and keep us safe and secure, God Almighty. Bring us together at the appointed time, Lord, as we prepare our hearts for the communion, God Almighty. Father, I pray in Jesus' name, in Jesus' name. I pray for your children at this moment, God Almighty. I just commit them all into your hands right now, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 God bless you all, and we'll see you tonight actually for the other service. If you're not there, we'll see you on Sunday.